योगः कर्मसु कौशलम्। Namaskar, good morning. Myself, Dr. Yogesh Parekh, in charge University Librarian, Gujarat University, and coordinator of this refresher course of Library and Information Science. First of all, I congratulate Dynamic Director of the HRDC, respected Dr. Jagdish Joshi sir, Dr. Preeti Mayani madam, Dr. C.G. Brahmbhatt sir, and their entire technical and administrative team to introduce such a ICT based refresher course, orientation course, PhD coursework for faculty members, for research scholars in this COVID-19 pandemic. On behalf of Gujarat University, Department of Library and Information Science, and HRDC Gujarat University, I convey my sincere welcomes to all the library professionals, all the library teachers, all the respected professionals to join with us in this refresher course from different area, different cities, different state of the nations. Let us start my presentation. Friends, I discuss about really needed technology, most useful technology in all area of library administrations, RFID technology and library services in concern, in context with the Gujarat University. Friends, in 2015, I submitted the proposal to our development officer to implementations of RFID technology in library administrations. In the end of the year 2015, almost, RUSA sanctioned the amount for the RFID project of Gujarat University Library. Friends, प्रेजेंट अभी का जो टाइम है, इफ यू कैन सी COVID-19 and various guidelines published by central government as well as state government for reopening of educational institutions as well as library. So in this pandemic period, after the reopening of library, RFID technology are very useful technology in concern with the COVID-19. If your university library, if your college library, if your public library, even if your college administrations, your university administrations have a technology of RFID, so mainly transaction with the users, with the faculty members, with the end users, there are different provisions, there are different components are available for RFID technology. So user can borrow their books, user can issue their books, user can return their books with the help of this technology, with self circulations, with self issue returns. हम ये कोविड-19 के संदर्भ में बात करें तो राज्य सरकार, केंद्र सरकार और जितने भी शैक्षणिक संस्थान है जो गाइडलाइन दे रहे हैं, उसके बाद जो शिक्षण संस्थाएं ओपन होगी, उनके बाद उनके लाइब्रेरीज ओपन होगी। अगर आपके पास RFID टेक्नोलॉजी है, आपके पास RFID के नेसेसरी इंस्ट्रूमेंट्स है, तो आप अपनी लाइब्रेरी में सेल्फ सर्कुलेशंस, सेल्फ इश्यू रिटर्न्स, स्टॉक टेकिंग, इवन लाइब्रेरी मेंबरशिप
भी आपको अगर ऑनलाइन इंट्रोड्यूस करनी है, विद द हेल्प ऑफ RFID टेक्नोलॉजी, ये सारी फैसिलिटीज, ये सारी इंफॉर्मेशन सर्विसेज आप अपने यूजर्स के लिए इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और मेन कि यहाँ डायरेक्ट इंटरेक्शंस, जो कोविड के संदर्भ की बात करते हैं हम, इन पर्टिकुलर कोविड सेंस, तो जहाँ डायरेक्ट जो कम्युनिकेशन है, डायरेक्ट वन टू वन, वन पर्सन टू अनदर पर्सन, जो इश्यू रिटर्न करना है वो विद द हेल्प ऑफ इंफॉर्मेशन कियोस्क, विद द हेल्प ऑफ सेल्फ सर्कुलेशन कियोस्क, विद द हेल्प ऑफ बुक ड्रॉप फैसिलिटीज। सो ये कोविड के टाइम में बहुत ही इजी हो जाएगा, और जो कम्युनिकेशन है दो लोगों का, उससे हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। गुजरात विश्वविद्यालय में मैंने 2015 में एक प्रपोजल पुटअप किया था, और उसी के संदर्भ में रूसा ने इन सर्टेन अमाउंट गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को RFID के संदर्भ में दिया था। तो उसी संदर्भ में ये पूरा प्रोजेक्ट इनिशिएट किया गया है। मैं आगे उसकी डिस्कस करूंगा। एज अ पार्ट ऑफ माय सेशंस, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के कंसर्न में है, तो मैं गुजरात यूनिवर्सिटी के संदर्भ में, उसके पुस्तकालय के संदर्भ में आपको कुछ बताना चाहूंगा। This is the main entrance of Gujarat University Library. This is the upper view of library building. If you can see outside area of the library, you can see a architectural building, architectural shape of Gujarat University Library is like a open book. अगर आप लाइब्रेरी को बाहर की तरफ से उसको, उसका आर्किटेक्चर को आप देखोगे तो ये कंप्लीटली लुक लाइक ए ओपन बुक। दिस इज द विजन ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। टू सपोर्ट स्कॉलरशिप एंड रिसर्च प्रोडक्टिविटी among the university community, to explore and implement innovative technology and services to deliver information and scholarly resources to the users, to establish a library as a knowledge hub. This is the mission of Gujarat University Library: to acquire, to store, to organize, and to disseminate resources for next generations in all subjects offered by Gujarat University, to provide access of all kind of information resources and information services to all affiliated community as per the objective, function and mission of Gujarat University. Build and strengthen information and communication technology based, ICT based infrastructure in a university library with the value added service. Library resources and services. Gujarat University Library is a state-of-the-art modern academic library, having high-quality research-based resources like print resources as well as electronic resources, e-journals, e-books, e-resources, e-databases, and many more. Various information services like convention services and IT-based services. Infrastructural facility of Gujarat University Library. This is the collection, the resources available at Gujarat University Library. We have more than 360,000 printed books in our collections, and more than 2 lakh books in electronic format in our collections. We have 250 plus journals, magazines in a printed format, and we have 15,000 plus journals subscribed as well as perpetual based available at Gujarat University Library.
as well as eSodh Sindhu project of UGC implement. We have reference books, we have bound volume collections, we have electronic media, we have ETD, printed thesis, as well as electronic thesis and dissertations, newspaper and various online database. These are the printed and electronic resources of Gujarat University Library. Here I mention about the quality of resources available of Gujarat University Library. We have IOP, we have SciFinder, we have Royal Society of Chemistry, we have Cambridge, we have Oxford, we have Proquist, we have SSC Online, we have ACS, we have AIP. So we have Project Muse, we have Springer Link, we have Science Direct. So जितने भी scholarly publishers है कि जो कलेक्शंस है, जो इलेक्ट्रॉनिक कलेक्शन है एज वेल एज प्रिंटेड कलेक्शन है, वो सारे गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में अवेलेबल है. These are the various library and information services provided by Gujarat University Library. The main service, document circulation service, reference service, current awareness service, reading service, reprographical service, interlibrary loan service, internet service, literature search service, OPEX service, various reading room are available, means reading room facilities, user orientation. Gujarat University Library conduct various user orientation program in the beginning of academic year as a central level as well as departmental and affiliated college level. Referral services, bibliographical services, syllabus services, anti-plagiarism checking services, and many more. Here I show you various infrastructure facility of Gujarat University Library. Friends, we have single window operating system for document circulations from syllabus services and additional services available at Gujarat University Library. We have ETD, Electronic and Thesis and Dissertations and E-Resources Lab. We have online public access catalog facility. Wi-Fi enabled, having modern e-library with 50 computers at Gujarat University Library, technical and administrative department, CCTV surveillance and server networking department, RFID enabled service and facilities, rare book collections which have 37 manuscript of basically concerned with the Jainism, Mahabharat and Vedas are available in our rare book collections section. Mobile rack for space management, keyboard for visually impaired community, remote access services for 24/7 as well as mobile library, MyLoft, My Library on Fingertips facilities available from the last year. IRNS, Indian Research Network Information System, a library initiative, faculty profile updations system with the correlated with the Vidwan database. These are the various infrastructural facility of Gujarat University Library. Now, I discuss about the theme of this session, RFID. Full form of the RFID, radio frequency identification system technology. If we can see about history of the RFID, the idea of RFID
Radio frequency identification system, radio frequency identification technology, was developed in 1948. The advent of tiny integrated circuits mean chips allowed solution designer to add intelligence to the movement of resources. When a chip and an aerial were attached to a sticky level, the RFID tag was born. This is the history of radio frequency identification system. What is RFID? RFID means radio frequency identification system. Use of radio waves to read and capture information stored on a tag attached to an object. This is one screenshot about the tag, antenna, reader, middleware, backend system. These all are component. These all are instrument, are mandatory to implementations to initiate of RFID project in any university, in any college, in any public libraries or any other institutions. Friends, why RFID? RFID क्यों जरूरी है? RFID का importance क्यों है? Patron expectations and services in the information age. Day by day technology increased हो रही है. Time factors are so important. Even हम हमारे लाइब्रेरी साइंस के 5 लॉस के संदर्भ में भी हम अगर डिस्कशन करें तो रंगनाथन सर है, उन्होंने भी बोला था सेव द टाइम ऑफ द यूजर्स. यूजर्स का मैक्सिमम टाइम हमको उनकी इंफॉर्मेशन या उनको सर्विसेज डिलीवर करने में हमको बचाना है. तो टेक्नोलॉजी फास्ट हो, मतलब डे बाय डे चेंज हो रही है. ऑटोमेशंस, डिजिटाइजेशंस, RFID और RFID में भी डे बाय डे इनोवेशंस हो रहे हैं. उनके मिडलवेयर्स है, उनके कंसर्न के साथ में ANSIP जो है, जो डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशंस में होता है, वहाँ उनकी टेक्नोलॉजी भी डे बाय डे अपडेशंस हो रही है. सो पैटर्न एक्सपेक्टेशन, अगर यूजर्स वो टेक्नोलॉजी से हैबिचुअल हो रहा है तो इन एक्सपेक्टेशंस ऑफ द पैटर्न्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ द यूजर्स, हर एक यूनिवर्सिटी को या हर एक कॉलेज लाइब्रेरी को या हर एक पब्लिक लाइब्रेरी को उसी दिशा में ICT को आगे बढ़ाना है. और यूजर के एक्सपेक्टेशंस के संदर्भ में भी RFID अभी के टाइम में, अगर कोविड के टाइम में देखना चाहे तो नेसेसरी, मैं इसको नेसेसरी बताऊंगा. हर एक लाइब्रेरी को अगर यूजर्स के साथ डायरेक्ट कम्युनिकेशन में नहीं आना तो RFID इज द बेस्ट ऑप्शन आफ्टर द पोस्ट कोविड ऑफ रीओपनिंग ऑफ any libraries. Lack of information technology, knowledge how, lack of staff. अगर हम सभी जानते हैं कि रिक्रूटमेंट अभी नहीं हो रही, अभी भी नहीं हो रही, या गवर्नमेंट में क्या होता है कि इन सर्टेन पीरियड के बाद रिक्रूटमेंट होता है, फाइनेंशियली सैंक्शन होता है, पोस्ट का सैंक्शन होता है, उसके बाद रिक्रूटमेंट कहीं ना कहीं आगे बढ़ती है. अगर आपके पास स्टाफ की कमी है, अगर इफ यू हैव RFID, आपके पास 2 सैप सर्कुलेशन कियोस्क है, आपके पास बुक ड्रॉप्ड है और RFID पूरा इंप्लीमेंट हो गया है, सो यूजर डायरेक्टली कैन, वो स्टैक रूम में जाएगा, अपनी बुक्स को कलेक्ट करेगा, सैप सर्कुलेशन जो है डेट से वो अपना जो रिसोर्सेज है अपना बुक इश्यू करवाएंगे और वो बाहर चले जाएंगे. और जो एंटीना, जो गेट एंटीना लगा है, अगर कोई यूजर अनऑथोराइज्ड भी अगर बुक्स को बाहर लेके जाता है तो एक जो नॉइज क्रिएट होता है या जो मतलब जो सायरन का आवाज होता है, तो वहां से भी सिक्योरिटी, मतलब सिक्योरिटी मेजर्स भी वहां पे मतलब ये प्रोजेक्ट में आ जाते हैं, तो वो भी एक बेनिफिट्स रहेगा. और बुक ड्रॉप है, अगर आपने उसको स्पेसिफिकली आपके बिल्डिंग या लाइब्रेरी बिल्डिंग में एग्जैक्टली उसको आउटसाइड, जहां से बाहर यूजर्स डायरेक्टली वहां बुक अपना सबमिट करवा सकता है या रिटर्न कर सकता है. तो अगर आपके पास लैक ऑफ स्टाफ है तो भी RFID
से आप सारा मतलब जो अपना सिस्टम है उसको रन कर सकते हो। लॉस्ट ऑफ लाइब्रेरी मटेरियल्स, पहले क्या था कि अगर लाइब्रेरी जब जब स्टॉक टेकिंग है ना, एवरी ईयर स्टॉक टेकिंग is a big task for any libraries, any used libraries, big libraries. If you have RFID system तो आप उसको every year easily stock taking कर सकते हो, stock taking में आगे बढ़ सकते हो। Investment in a system and automation technology, support service from vendor. Again, why RFID? बहुत ही इमर्जिंग टेक्नोलॉजी है, लेस लेबर इंटेंसिव, इतना लेबर नहीं लगता। सिक्योरिटी ऑफ होल लाइब्रेरी थ्रू गेट एंटीना, अगर लाइब्रेरी के जितने भी एग्जिट्स है वहां अगर आपने गेट लगवा लिया ना, तो डेफिनेटली लाइब्रेरी का जो कोई भी बुक्स है, कोई भी रिसोर्सेज, वो आउटसाइड जा नहीं सकेगा विदाउट सर्कुलेशन। स्मार्ट कार्ड इश्यूड टू द स्टूडेंट्स, आइडेंटिटी कार्ड। आप एक कॉमन अपना जो कॉलेज है या अपनी जो इंस्टीट्यूशन है उनके जो यूजर्स है उनके लिए एक कॉमन कार्ड RFID बेस्ड, वो स्मार्ट कार्ड एज ए लाइब्रेरी आइडेंटिटी कार्ड भी है, एज ए स्टूडेंट्स आइडेंटिटी कार्ड भी है। वो एक बेनिफिट RFID से है, तो RFID इसके लिए भी जरूरी है। वेरियस सर्विसेज ऑफ RFID, ह्यूज टास्क ऑफ इन्वेंटरी कैन बी एड्रेस्ड थ्रू हैंडल रीडर्स। मैंने बताया ना कि स्टॉक टेकिंग आर अ वेरी ह्यूज and different task for any big library, any large collection library. If your library have RFID systems, तो आप इजीली जो हैंडल रीडर्स है उसके साथ पूरी इन्वेंटरी को आप इजीली स्टॉक टेकिंग कर सकते हो, आप वो मैनेज कर सकते हो। तो these are the services from RFID. Book return stations and kiosks were needed to be promote self circulations. फैसिलिटीज है, सेल्फ सर्कुलेशन में 2 कियोस्क रख दिए, स्टूडेंट्स खुद ही स्टैक एरिया में से अपना बुक्स कलेक्ट करके आता है, वो सेल्फ सर्कुलेशन। उसके बाद एक रिसिप्ट जनरेट होता है, वही रिसिप्ट लेके गेट पे वो रिसिप्ट देके वो अपना बुक लेके वो जा सकता है। सेम इज अ बुक रिटर्न, बुक ड्रॉप लगाया, वहां उन्होंने बुक ड्रॉप कर दिया और वो रिटर्न लेके चला गया। स्मार्ट कार्ड प्रिंटर्स, तो स्मार्ट कार्ड प्रिंटर्स भी अवेलेबल है इसके अंदर। तो वो स्मार्ट कार्ड की ड्यूरेबिलिटी, अगर आपने क्या फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट से उनको 3 साल का कार्ड दे दिया, तो आपका क्या होगा कि आपको वो स्टेशनरी भी प्रिजर्व हो जाएगी, मतलब स्टेशनरी भी बचेगी, उसका फाइनेंस भी बचेगा। एक साथ का वही जो स्मार्ट कार्ड है वो बेसिकली कम आइडेंटिटी कार्ड है, यानी यूनिवर्सिटी में एक ही आइडेंटिफिकेशन सिस्टम के साथ स्टूडेंट्स हॉस्टल में भी यूटिलाइज कर सकता है, स्टूडेंट उसको लाइब्रेरी में भी यूटिलाइज कर सकता है, स्टूडेंट उसको यूनिवर्सिटी की कंसर्न ऑल द सर्विसेज है अगर वहां उसको यूटिलाइज करना है तो एक कॉमन कॉन्फ़िगरेशन के साथ में स्मार्ट कार्ड की फैसिलिटीज जो RFID में, वो भी उसकी एक सर्विसेज है। These are the components of RFID. Tag are mandatory, gate antenna, middleware and host. These are the RFID connection profile and standard. अगर आप RFID के प्रोजेक्ट आप इम्प्लीमेंट करते हो तो कुछ प्रोटोकॉल से, कुछ प्रोफाइल स्टैंडर्ड से वो आपको मैंडेटरी आपके जो LMS डेटाबेस के साथ उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है कि एनसिप क्लाइंट है, एनसिप सर्वर्स है, मिडलवेयर है और नेसेसरी जो प्रोटोकॉल्स है, तब सपोज ISO 15693, ISO 18003, सो कंसर्न जो भी प्रोटोकॉल्स है वो प्रोटोकॉल्स आपको आपके LMS जो सर्वर है, आपका LMS जो डेटाबेस है उसके कंसर्न में आपको कॉन्फ़िगरेशंस और नेसेसरी स्टैंडर्ड का आपको यूटिलाइजेशन करना है। Here I mention about the comparative study of 3 technology. One is RFID, one is barcode, and another is EM security. So here I give you
1 to 16 number, and the features, various features are available in RFID, in barcode technology, in EM security. So built in a security, yes. In barcode technology, no. EM security, yes. Automation circulation of books in RFID technology, yes. In a barcode, yes. In a EM security, no. So these 1 to 16 आप देख सकते हो, आप पढ़ सकते हो, मैं डिटेल में नहीं समझाऊंगा इसके ऊपर. इसमें नॉन लाइन ऑफ साइट, लाइन ऑफ साइट्स एंड नॉन लाइन ऑफ साइट्स ऑफ ईएम, इसके जो आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी है उनके कंसर्न में मैंने पूरा डिटेल यहाँ पे दिया है. सो अगर आपकी लाइब्रेरी में, सपोज लाइब्रेरी में 24 आवर्स आपको रीडिंग रूम भी ओपन रखा है, आपकी लाइब्रेरी RFID है, तो सपोज और एक सिक्योरिटी सिस्टम अच्छा है, 1 पर्सन आर एट द सिक्योरिटी गेट RFID टेक्नोलॉजी से, तो आपकी लाइब्रेरी को वो 24 आवर्स लाइब्रेरी ओपन एक्सेस यानी रीडिंग रूम ओपन एक्सेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, सेल्फ चेक इन फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है, कॉमन ID कार्ड, ऑटोमेटेड सॉर्टिंग, रिड्यूस RSI टू स्टाफ, ऑटोमेशन स्टॉक मैनेजमेंट, लॉन्गर टैब ड्यूरेबिलिटी, सिक्योर इंटर लाइब्रेरी बोरोइंग, मल्टीपल आइटम आइडेंटिफिकेशंस, ऑटोमेट सर्च, ये सारी जो फैसिलिटीज है नॉन लाइन ऑफ साइट्स in RFID are available. RFID functional advantage to the staff members, benefits to staff, less time needed for circulation operations. अगर आप देखो पहले आप आपके पास एक मैनुअल सिस्टम था, तो आपको क्या था, मैनुअल सिस्टम में आपको जो स्टूडेंट्स है या जो यूजर्स है वो बुक्स स्टैक एरिया से कलेक्ट करके लाता है, फिर आपको एक रिसिप्ट भरना होता है, फिर आपको मैन्युअली उसको लिखना है, स्टैंप लगाना है, फिर उनको देना है, फिर वो आगे जो गेट काउंटर है वहां पे वो बुक बताएंगे, गेट पास वहां पे देंगे, फिर वो बाहर लेके जाएंगे. इफ यू हैव RFID टेक्नोलॉजी तो आपके पास सेल्फ सर्कुलेशन का भी प्रोविजन है. अब वहां से डायरेक्टली उनको इश्यू कर सर्कुलेट, एक बार 2 बार आप ट्रेनिंग दो उनको, फिर वो खुद सेल्फ सर्कुलेशन का सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, फिर आपको सीधा वो रिसिप्ट है वो गेट पे सबमिट करवाना है और सीधा उनको बुक्स लेके चला जाना है. तो लेस टाइम नीडेड फॉर सर्कुलेशन ऑपरेशन, यूजर एज वेल एज एम्प्लॉइज का भी टाइम यहाँ पे प्रिजर्व होता है. इम्प्लीमेंट ऑफ RFID कंसिडर reduce the amount of time required to issue, receive, transport, sort and sell in library materials. ये जो benefits है ये सारे एरिया में, अगर आपके पास RFID सिस्टम्स है तो ये सारे एरिया में आपको कहीं ना कहीं यूजर पॉइंट ऑफ व्यू एज वेल एज लाइब्रेरी स्टाफ पॉइंट ऑफ व्यू, ये टाइम मैनेजमेंट उसका कहीं ना कहीं टाइम आपका बचेगा और वही टाइम आप लाइब्रेरी के अदर मैनेजमेंट में आप अप्लाई कर सकते हो. Efficient inventory management. Inventory management can be done using a handle reader. Without closing the library and is at least 20 times faster compared to existing barcode based systems. आप देखेंगे तो ये क्लियर कट है. अगर आपको जो इन्वेंटरी मैनेजमेंट करना है तो हैंडल रीडर के साथ आप इजीली in compared to barcode system is very effective, 20 times faster बताया है. Reduce repetitive stress injuries, RSI. RFID system reduce repetitive scanning of individual items at the circulant desk during checkout and check-in. Taking inventory in a RFID based system doesn't require physical desalving and salving of library materials. These are the radio frequency identification system functional advantage to the staff member as well as library users. Now I discuss about the RFID project implemented at Gujarat University Library. गुजरात विश्वविद्यालय पुस्तकालय में जो RFID प्रोजेक्ट हुआ
सक्सेसफुली इम्प्लीमेंटेशन हुआ, उसके संदर्भ में मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस टू प्रोक्यूरमेंट ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। आरएफआईडी के संदर्भ में जो गुजरात यूनिवर्सिटी में प्रोक्यूरमेंट करना था कि हम किसको आरएफआईडी के लिए, कौन से वेंडर को या कौन से मतलब बेसिकली आरएफआईडी जो प्रोवाइडर है उनका हम यूटिलाइजेशन करें या उनको हम ये ऑर्डर दे, ये गुजरात यूनिवर्सिटी के प्रोजेक्ट के लिए। सो इन फर्स्ट ऑफ physical visit were made to 3 different library where RFID facilities available before the preparing of proposals. अहमदाबाद में हमने ब्रिटिश लाइब्रेरी है, गांधीनगर में स्टेट पब्लिक लाइब्रेरी है, सचिवालय लाइब्रेरी है। ऐसे 3 जगह पे जहां RFID ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है, इंट्रोड्यूस किया गया, उनकी विजिट ली। वहां पे कंपोनेंट्स कौन से, वहां पे LMS सॉफ्टवेयर कौन सा है, वहां पे उनके कॉन्फ़िगरेशंस में जो RFID के मिडलवेयर है, चिप सर्वर से उनका कॉन्फ़िगरेशंस, सारे टेक्निकल प्रोफाइल, सारे टेक्निकल स्टैंडर्ड्स, टेक्निकल प्रोटोकॉल्स, जितने वहां पे इंस्ट्रूमेंट वहां पे लगे हुए, उसके संदर्भ में एक फिजिकल विजिट किया। प्रैक्टिकल सेल्फ सर्कुलेशन, प्रैक्टिकल सेल्फ रिटर्न, ये सारे सिस्टम का हमने एक स्टडी किया बिफोर द प्रिपेयरिंग ऑफ प्रपोजल ऑफ गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी। RFID proposals were prepared and presented in the library committee meeting. And once the proposal is approved, Vice Chancellor suggests to approach the RUSA, Rashtriya Uchchatar Shiksha Abhiyan, for funding. And RUSA was approached with the RFID proposal. हमने एज ए लाइब्रेरी कमिटी में उसको पास करवाया और उसके बाद हमारे डेवलपमेंट ऑफिसर के थ्रू हमने रूसा के आगे हमने प्रपोज किया। इन कंसर्न विद द पार्ट 1 वीडियो, प्रीवियस वीडियो सेशंस ऑफ RFID, द बजट was allocated by RUSA along with the guidelines of purchase of process of RFID. As a Gujarat University, we request to Gujarat Informatics Limited, GIL, was approached by Gujarat University Library. GIL is the company of Government of Gujarat, which concern with the procurement of all the electronic resources and other necessary resources with the help of e-tender. So we approached to the GIL and we authorized our library committee, our executive council and necessary committee to give a concern with the procurement of RFID through Gujarat Informatics Limited, a company of Government of Gujarat. GIL, Gujarat Informatics Limited, published an open tender with the necessary technical specifications and all other technical and financial bid opening procedure as per the government norms, as per the GIL norms. The order was given to Rapid Radio through tendering system, through tendering process. Here I mention, here I show you executions of outline of RFID project of Gujarat University Library. In phase 1, preparatory works, visit to RFID enabled libraries, consult and advise, implement for the technological review, preparation and submissions of proposal, budget allocations and RUSA funds, approval from Honorable Vice Chancellor, Sir Office, Library Committee,
and Executive Council, a top governing body of the Gujarat University. In a phase 2, we approached to GIL tendering and further all necessary process for procurement of RFID. Services from GIL tendering of the RFID system involving series of meetings. Tendering process was initiated by GIL in October 2016 and concluded by January 2017. Order as per the L1, order was placed to Rapid Radio Solutions Private Limited as per terms and conditions suggested by GIL Gujarat Informatics Limited, a company of Gujarat government. In a phase 3, main part, executions, material regarding to RFID delivered in February 2017, followed by inspection of GIL. Smart card designs for the library patrons and hardware placements were finalized to get started with the implementations. Middleware integrations with the library management software LMS of SOL 2.0. RFID hardware commissioning completed by end of April 2017, followed by tagging. These are the 3 phases of executions, outline of radio frequency identification system of Gujarat University Library. In the month of July 7/7/2017, RFID project inaugurated by Honorable Education Minister of Gujarat State, Sri Bhupendra Singh Chudasama sir, in a presence of Honorable Vice Chancellor Dr. Himanshu Pandya sir and ex-Vice Chancellor of Gujarat University, respected Dr. M.N. Patel sir, and the Registrar of Gujarat University, Dr. P.M. Patel sir. This is the pictures of inaugural function of RFID. Now I discuss with the security of RFID technology. In our library, Gujarat University Library, the security system is the most development system. The old security door is just a symbolic door, but now at the new security door as a real security system of RFID technology. The new door can be controlled 3 to 4 meters area of the outside door easily. In addition, the new door can provide reporting the formal and informal information about books movement during the controlling process. While RFID can use in library as an anti-theft system, the user and employees of GUL are 100%. We have feedback, daily feedback of user for document circulations and other services of Gujarat University Library. The users are, as well as employees, are fully satisfied with the RFID technology. This is the gate antenna system near the main entrance door of the Gujarat University Library. Here you can see the pictures. One, this is issued books. So there is no signal because this is issued books. Issued books है तो कोई signal यहाँ पे बता नहीं रहा. So books as per the RFID protocols, as per the RFID tagging and
other necessary protocols, वो issued हुआ है. Also you can see here the without issued books. Here the buzzer at security gate, here red line. वो buzzer continues जब यूजर्स विदाउट सर्कुलेशंस या विदाउट प्रिविलेजेस वो बुक्स अपना बोरो करके बाहर लेके जा रहा है या सर्कुलेट करके बाहर लेके जा रहा है, तो आप देख सकते हो यहाँ पे, ये मैं एरो लेके जा रहा हूँ, वहां पे रेड लाइट, एक बजर, एक वॉइस क्रिएट हो रहा है, एक सायरन बज रहा है. सो दिस इज द गेट डिटेक्शन सिस्टम वी कैन टेल अबाउट एज अ सिक्योरिटी सिस्टम. नाउ आई डिस्कस with the stock verifications with RFID technology. कोई भी बड़ी लाइब्रेरी, आगे भी मैंने प्रीवियसली भी मैंने दोनों वीडियो में कहीं ना कहीं बात का मैंने उल्लेख किया है. आई डिस्कस अबाउट स्टॉक वेरिफिकेशन की बात करते हैं ना, वो कोई भी बड़ा विश्वविद्यालय है, ग्रंथालय है या कोई भी लाइब्रेरी है, उनके लिए बहुत ही डिफिकल्ट टास्क होता है. बिकॉज अगर यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की कंसर्न की मैं बात करूँ, एज ए गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, यहाँ कंटिन्यूस रीडिंग सर्विस जो कंटिन्यूस 365 डे इंक्लूडिंग फ्रॉम लास्ट, मैं पिछले 3 साल की बात करूँ तो दिवाली की छुट्टियों में भी लाइब्रेरी वर्किंग रही है, लाइब्रेरी ओपन रही है, यानी 365 दिन लाइब्रेरी खुली रही है अपने यूजर्स के लिए, सिंगल डे छुट्टी नहीं है. तो तब क्या होता है, यह टाइम में कंटिन्यूस यूजर्स आते हैं, सर्कुलेशन होता है, एग्जाम्स होते हैं, एक सेमेस्टर खत्म हो उसके बाद रिपीटेड एग्जाम्स आए, उसके बाद फिर इंटरनल एग्जाम आ गए कॉलेजेस के डिपार्टमेंट के, फिर फाइनल एग्जाम्स आ गए. तो ये सर्कुलेशन चलता रहता है. उसी टाइम पे एक यूनिवर्सिटी जो लाइब्रेरीज है या एक बड़ा जो पुस्तकालय है या ग्रंथालय है, बड़ा ग्रंथालय जिनका जो कलेक्शन है वो लार्ज नंबर है, उनके लिए स्टॉक टेकिंग है ना, वो बहुत ही बड़ी समस्या है, बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम है. तो अगर आपके पास RFID टेक्नोलॉजी है तो ये काम बहुत ही इजीली पूरे साल में एक बार आप अगर स्टॉक वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो विद द हेल्प ऑफ दिस टेक्नोलॉजी ये काम बहुत ही इजीली हो सकता है. इन जियो लाइब्रेरी counting is performed by RFID technology much faster and easier than before. The stock can be done with portable handle reader with only one person in a few hours a day. The data goes to the storage unit and can be downloaded at a server later on. During the stock verification process, user can use book at the same time and staff is very happy for stock verification with the RFID technology. तो ये टेक्नोलॉजी के हेल्प, ये टेक्नोलॉजी की सहायता से आप स्टॉक वेरिफिकेशन है बहुत ही इजीली इन इफेक्टिव वे आप कर सकते हो. दिस पिक्चर शो यू, दिस इज, ये आप देख रहे हैं, ये मेरा हमारे सेवक भाई है जो इज अ क्लास फॉर एम्प्लॉय, सेवक भाई, मैं उनको सेवक भाई बोलता हूँ. वो ये टेक्नोलॉजी को इजीली वो समझ सकते हैं और वही टेक्नोलॉजी के माध्यम से वो जो बुक्स यूजर्स आता है ना, बोले मुझे सो एंड सो एक्सेशन नंबर की या सो एंड सो नंबर बुक्स चाहिए, तो वो रैक में ये उसको यूं ट्रैक करके वो बुक्स को फाइंड आउट कर सकते हैं. और वो स्टॉक टेकिंग के लिए भी हम उनको समझाते हैं कि आपको ऐसे स्टॉक टेकिंग करना है तो वो कर सकते हैं. सो ये इतनी इजी टेक्नोलॉजी है. आप देखो हमारे जो महेश भाई है बहुत ही अच्छा काम करते हैं, स्टैक एरिया संभालते हैं, तो जो भी यूजर्स आते हैं लाइब्रेरी के उनको वही हैंडल रीडर के माध्यम से वो बुक्स को ढूंढ के उनको प्रोवाइड करते हैं. इवन स्टॉक टेकिंग के काम में भी महेश भाई वेरी एक्टिवली काम करते हैं, ये हैंडल रीडर से वो काम कर रहे हैं महेश भाई. तो आप देख रहे हो कि ये बेनिफिट्स है RFID टेक्नोलॉजी के. डेटा, मैं यहाँ पे डेटा एनालिसिस फाइंडिंग्स की बात कर रहा हूँ. द यूजेज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी, गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी यूजिंग RFID सिस्टम सिंस 2016, 2016 से हम ये जब ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तब से शुरुआत में इनिशियल स्टेज पे एक पायलट प्रोजेक्ट जैसा, ये टैगिंग एक, उसके बाद
फुल फ्लेज में ये जब टेंडरिंग हुआ और ये इनिशिएटिव हुआ, तो इसके बाद ये इंट्रोड्यूस हुआ, उसके बाद लाइब्रेरी फुल फ्लेज में RFID की टेक्नोलॉजी के माध्यम से चल रही है। द लाइब्रेरी स्टाफ इज वेरी fully satisfied with the technology. This is the security with RFID technology जो आगे मैंने डिस्कस किया. The new door is provided reporting to the normal and informal information about books movement during the controlling process. RFID is used in our library is an anti-theft system. The user and employees you all are 100% satisfied with this technology. Stock verifications. The stock done by portable handle reader. वो मैंने जो आगे डिस्कस किया वही संदर्भ में कि जू लाइब्रेरी में रिपोर्ट्स ऑफ अबाउट रीडर प्रोफाइल रेगुलरली, तो ये स्टॉक वेरिफिकेशन है, सेल्फ सर्कुलेशन है, सेल्फ रिटर्न है, बुक्स को सर्च करना है स्टैक एरिया में से विद द हेल्प ऑफ हैंडल रीडर, और स्टॉक वेरिफिकेशन है. तो ये सारे बेनिफिट्स है ना जो आप, और अभी तो रिसेंटली गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में बिफोर कोविड इन फरवरी में हमने इंट्रोड्यूस किया था. अगर कोई स्टूडेंट्स है उनको पेटीएम या फोन पे या गूगल पे से अपना फाइन पे करना है, तो वो एक बारकोड से वो अपने फोन से वो स्कैन करते हैं, और स्कैन करने के बाद जो भी फाइन होता है तो वो फाइन वो थ्रू डायरेक्टली मतलब जो सेल्फ सर्कुलेशन कियोस्क से उनके माध्यम से वो अपना जो फाइन वो पे कर सकते हैं, वो रिसिप्ट भी वहां से जनरेट होते हैं. तो ये फैसिलिटी भी डे बाय डे हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस की है. द यूसेज ऑफ RFID टेक्नोलॉजी काफी सारा मतलब जो सर्कुलेशन वर्क है हमारा, सारा मतलब जो टेक्निकल प्रोसेस वर्क है, बुक्स अगर हम परचेस करते हैं डेटाबेस में उसके एंटर होने के बाद जो पूरा काम RFID बेस ही हो रहा है. स्मार्ट कार्ड भी RFID के थ्रू हम दे रहे हैं. सर्कुलेशन सारा मतलब जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो यूजर्स के साथ सर्कुलेशन सर्विसेज है या एक्विजिशन के बाद में जो टेक्निकल सारी प्रोसेसेस है वो RFID टेक्नोलॉजी के माध्यम से ही गुजरात यूनिवर्सिटी में हो रही है. दिस आर, ये मैंने 2019 लिया है. 2020 में जनवरी फरवरी के बाद कोविड आ गया, तो वो डेटा मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं बताया आपको. तो ये कुछ स्टैटिस्टिक है जो नंबर ऑफ बुक्स इश्यू रिटर्न्स जो जब हमने स्टार्ट किया ना 2016 में, 2017 से फुल फ्लेज में, तो ये पूरा स्टैटिस्टिक है. द मंथ वाइज नंबर ऑफ बुक इश्यूड, नंबर ऑफ बुक्स रिटर्न. ये टोटल नंबर दिया है, वो मैंने मंथ वाइज दिया था. तो ये टोटल नंबर दिया है कि जैसे आप देख रहे हो कि 1/7/17 से 5/9/2019 तक का मैंने डेटा लिया है. तो 22,000 और 22,291 बुक्स सर्कुलेट यानी इश्यू रिटर्न्स ये RFID के माध्यम से हुई है with the help of the library staff and without help of the library staff with the help of self circulation system. ये स्टैटिस्टिक मैंने जो आगे बताया वो टेबुलर फॉर्म में मैंने बताया कि जो 1/7/2017 से 31/12 तक जो है वो 2,524, in 2018 10,515, in 2019 9,252, in total number of 22,291 books. This is the facility, the pictures shown you. Self check-in outbox are available at Gujarat University Library. This is the one of Gujarat University Library staff members in the users. जो यूजर्स है वो खुद ही, हम उनको एक बार ओरिएंटेशन देते हैं कि सर्कुलेशन कैसे करना है. वो खुद ही इश्यू रिटर्न जो सेल्फ सर्कुलेशन जो है वहां से वो बुक्स अपना स्टैक रूम में से कलेक्ट करके खुद ही बोरो करते हैं, खुद ही इश्यूड करवाते, और वो जो रिसिप्ट है नेसेसरी रिसिप्ट जो चेक काउंटर पर देके वो अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट करते. तो ये बेनिफिट है RFID से. दिस इज द फैसिलिटी ऑफ बुक ड्रॉप स्टेशन एट लाइब्रेरीज. मतलब मेन गेट के बाजू में ही हमने ये बुक ड्रॉप स्टेशन बताया है.
तो वहाँ मोस्टली यूजर्स जो बुक ड्रॉप स्टेशन का ही, मतलब छुट्टी के दिनों में भी अगर उनका डेट होता है तो बुक्स रिटर्न करके वहाँ से अपना रिसिप्ट जनरेट करके वो बुक्स ले जाते हैं। तो ये बेनिफिट है। अगर पोस्ट कोविड में भी मतलब जो स्टूडेंट्स ने इश्यू करवाने के बाद उनको लाइब्रेरी में फिर से नहीं बुलाना, तो बाहर से ही वो बुक्स आप RFID ड्रॉप बॉक्स में रख सकते हो और रिटर्न ले सकते हो। तो ये बेनिफिट्स है RFID टेक्नोलॉजी के। ये मैंने कुछ हमारा जो स्टैक एरिया है और हमारा स्टाफ स्टेशन रीडर्स जो सर्कुलेशन है, कई बार ऐसी क्वेरी आती है, मतलब जो RFID हो गई उनका कॉन्फ़िगरेशन हो गया, लेकिन जब एट द टाइम ऑफ इश्यू रिटर्न जो कॉन्फ़िगरेशन नहीं होता है, तो जो स्टाफ स्टेशन रीडर्स है वहीं से जो टैग उसको टैगिंग करके उसके बाद उनको सर्कुलेशन के लिए हम बुक्स प्रोवाइड कर देते हैं। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये है स्टाफ स्टेशन रीडर, दिस इज हियर, यहाँ भी स्टाफ स्टेशन रीडर है। तो यहाँ से भी आप जो कॉन्फ़िगरेशन जो स्टाफ जो बुक्स और जो डेटाबेस के साथ कॉन्फ़िगर करके स्टूडेंट्स को वो सर्कुलेट के लिए वो अपने प्रिविलेज अवेलेबल करा सकते हैं। पैट्रन रजिस्ट्रेशन एंड RFID, ये गुजरात यूनिवर्सिटी ने स्पेसिफिकली एक कार्ड जो डेवलप किया है लाइब्रेरी स्टाफ्स के लिए, लाइब्रेरी के मेंबर्स के लिए। तो यहीं से ही डिजिटली कार्ड हम उनको, स्टूडेंट्स आते हैं और उनको डिजिटली कार्ड इमीडिएटली उनको उनके डेटाबेस में एंट्री करके प्रोवाइड करके टैगिंग करके जो रीडर है उनके साथ टैग करके उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। इन कॉन्टेक्स्ट टू कोविड की मैं बात करूँ तो आप सॉल्व 3.0 में या 2.0 में प्रोविजन से सारा डिटेल्स आप ऑनलाइन कलेक्ट करवा लो, इंक्लूडिंग फोटोग्राफ्स, इंक्लूडिंग डिजिटल सिग्नेचर, इंक्लूडिंग ऑल द डेटा नेसेसरी फॉर लाइब्रेरी मेंबरशिप। उसके बाद आप जनरेट कर दो, अपलोड कर दो और फिर कार्ड जनरेट हो जाए। फिर वो कार्ड कलेक्ट के लिए आप स्पेसिफिकली सोशल डिस्टेंस के साथ में कुछ अरेंजमेंट के साथ उनको आप कार्ड प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये बेनिफिट भी अगर कोविड-19 के बाद में अगर लाइब्रेरी जब भी रीओपनिंग होती है तो ये सॉल्व 3.0 जो LMS में जो प्रोविजंस है उनके थ्रू आप RFID के साथ कॉन्फ़िगरेशन करके वो भी आप उसको स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल करा सकते हो। ऑनलाइन मेंबरशिप का प्रोविजन भी आप अवेलेबल करवा सकते हो। इम्प्लीमेंटेशंस एंड चैलेंजेस के बारे में बात करूंगा। जब ये प्रोजेक्ट हाथ में लिया तब जनरली कोई भी प्रोजेक्ट या कोई भी बड़ा टास्क इन्हें गवर्नमेंट सिस्टम सब हाथ में लेते तो कुछ ना कुछ चैलेंजेस भी फेस करनी होती है। शुरुआत में टेंडरिंग की रिगार्डिंग जो चैलेंजेस थी, जो हमने GIL को ही दे दिया, जो गुजरात सरकार की कंपनी कर रही है, तो ट्रांसपेरेंसी रहती है। तो ये बेनिफिट हुआ कि हमने गवर्नमेंट को ही दे दिया टेंडरिंग का। Solve 2.0 ILMS was integrated with RFID system with the help of ImpleNet का जो सपोर्ट लिया हमने, उसमें जो मिडलवेयर के साथ एनसिप सर्वर्स है, ये सारा बैकएंड जो टेक्नोलॉजिकल कंसेप्ट है, टेक्नोलॉजिकल जो बैकएंड सिस्टम से उनको वो हम फेस कर रहे थे। तो ImpleNet ने हमको काफ़ी सपोर्ट किया इसके रिगार्डिंग। 250,000 books and journals and DVDs were tagged in RFID tag with stickers. Almost गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में ये RFID जब प्रोजेक्ट हमने इनिशिएट किया, स्टार्ट किया, तो सुबह 7 बजे से काम शुरू हो जाता था और रात को 11-12 बजे तक। और लास्ट फेज में तो ये काम हमने ओवरनाइट भी, मतलब हमको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करना था विद इन शॉर्ट पीरियड में, तो ओवरनाइट भी काम करके ये प्रोजेक्ट हमने कंप्लीट किया। It took around 6 months timing of tagging of 2.5 lakh books. While tagging of books and some books are जिनके कंडीशंस नहीं है, तो बुक्स को हमने बाइंडिंग्स के लिए स्पेशल केयर किया एंड टेकन टू अवॉइड डैमेज, क्योंकि कंटेंट और बुक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है। फ्रीक्वेंट ट्रेनिंग नीडेड ड्यू टू कॉम्बिनेशंस ऑफ रेगुलर एंड टेम्पररी स्टाफ। लाइब्रेरी में एम्प्लॉयज ऑलरेडी काफी रिटायर हो चुके हैं, तो नए टेम्पररी स्टाफ और जो परमानेंट स्टाफ की कंटिन्यूस हमने उनको टैगिंग कैसे करना है, उनको LMS डेटाबेस के साथ फिर कॉन्फ़िगरेशंस कैसे करना है, स्टाफ स्टेशन जो रीडर्स हैं उनके साथ कैसे कॉन्फ़िगरेशंस करना है, वो हमने डे बाय डे फ्रीक्वेंटली उनको ट्रेनिंग दिया। और ये पूरा सिस्टम, पूरा प्रोजेक्ट हमने ये इंट्रोड्यूस किया, वो इनिशिएट किया। फीडबैक
of users and staff of library about every day जो भी यूजर्स आते लाइब्रेरी में, सपोज 50 यूजर्स आए तो 50 में से ऑलमोस्ट हमारा एक अप्रोच रहता है कि 40 यूजर्स RFID का फीडबैक देके जाए। तो हमने 2000 से भी ज़्यादा पैटर्न्स के फीडबैक RFID जो प्रोजेक्ट है सेंट्रल लाइब्रेरी का उनके संदर्भ में लिया है। उन्होंने बताया है, मतलब ये कुछ मैं उसके मतलब कुछ निचोड़ की बात कर रहा हूँ, कुछ कंक्लूजन की बात कर रहा हूँ। सो इजी एंड फास्ट सर्कुलेशन, इजी फॉर रिसर्च सर्चिंग इन स्टैक एरिया। इवन स्टूडेंट्स को भी हम ओरिएंटेशन करते हैं हैंडल रीडर के साथ ढूंढने के लिए। 24/7 फैसिलिटीज फॉर रिटर्निंग ऑफ बुक ड्रॉप जो स्टेशन है वहाँ से हमने 24 घंटे ये प्रोविजन किया कि यूजर्स है वो कोई भी टाइम पे आके अपना बुक्स वो ड्रॉप कर सकता है। इजी फॉर स्टॉक टेकिंग, मोस्ट इजीएस्ट टेक्नोलॉजी बेटर देन बारकोड। बारकोड के कंपेयर में ये बहुत ही इजीएस्ट टेक्नोलॉजी है। यहाँ कुछ पिक्चर्स मैंने दिए हैं जो स्टूडेंट्स ने शुरुआत में हम जो रजिस्टर में फीडबैक लेते थे वो फीडबैक की मैंने यहाँ बात की जू लाइब्रेरी की। कोई भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी या कोई भी लाइब्रेरी में अगर हमको प्रोजेक्ट करना है तो कुछ चेकलिस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस जरूरी है। बजट अवेलेबिलिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी, ऑल बुक्स जर्नल सीरीज डेटा एंट्री इन स्टैंडर्ड ILMS लाइक SOL 2.0, Koha, e-Granthal, etc. ICT infrastructures like LAN server and internet connectivity. Necessary ISO standard and protocols like high frequency RFID and SIP protocols to be followed during procurement process. तो ये सारे चेकलिस्ट है और बेस्ट प्रैक्टिसेस है। जब भी कोई भी यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी, जब भी कोई भी पब्लिक लाइब्रेरी, जब भी कोई भी लाइब्रेरी के कंसर्न में हम जब RFID प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट इनिशिएट करने की बात करते हैं तो ये सारी चीजें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। ट्रेनिंग ऑफ लाइब्रेरी स्टाफ टू एंड यूजर्स, अवॉइड कंफ्यूजन्स एंड confusion and easy adoptions of new technology. So continuous library staff को as well as जो beginning of the academic year या जो भी यूजर्स कंटिन्यूस लाइब्रेरी में आते हैं उनको ये टेक्नोलॉजी के साथ उनको हैबिचुअल करना, उनको कंटिन्यूस उनको ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है। ये भी एक बेस्ट प्रैक्टिसेस है। एंश्योर टैग सेवी स्टाफ इन योर लाइब्रेरी टू स्मूथ माइग्रेशन फ्रॉम बारकोड टू RFID टेक्नोलॉजी। आपके जो स्टाफ है उसको टेक्नो सेवी आपको बनाना है, उसको कंटिन्यूस ट्रेनिंग देना है। अकाउंटेबिलिटी ऑफ ऑपरेटिंग RFID इक्विपमेंट्स टू एंश्योर स्मूथ ऑपरेशन ऑफ लाइब्रेरी फंक्शंस, ये भी बहुत नेसेसरी है चेकलिस्ट और बेस्ट प्रैक्टिसेस के संदर्भ में। सो मैं कंक्लूजन में आता हूँ। पूरा मेरा जो डिस्कशन था व्हाट इज RFID के लिए कौन से कंपोनेंट जरूरी है, कौन से प्रोटोकॉल जरूरी है, इन कॉन्टेक्स्ट गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी हमने क्या किया। दिस स्टडी वाज डिजाइन, मैं कंक्लूजन की बात करूँ, दिस स्टडी वाज डिजाइन टू एक्सप्लेन how RFID technology boosts library services and shall be used in GUL. What are the benefits of using this technology? For the determinations, it was researched with the case study at GUL in Ahmedabad with quantitative methods. The study provided information such as exploratory research. In this case, it was also found out of the RFID provide both the time staff saving for GU library operations. Using RFID system in GU library beneficial also for users. Reader could easily find their needed books with a portable handheld reader, whatever they were in the library. Here I discuss about the ongoing project of Gujarat University Library, a new building of Department of Library Information Science in Gujarat University. The principal, all the sanction given by Library Committee, Building Committee and Executive Council for this building. New reading room facility available at Central Library in a new building, almost capacity of 1,500 students,
और अभी इसका जो कंस्ट्रक्शन का जो वर्क है वो G+3 यानी ऑलमोस्ट वो थर्ड स्टेज में है, यानी इसके बाद फोर्थ स्टेज में, मतलब ऑलमोस्ट दिवाली या आफ्टर द दिवाली, बिफोर द डिसम्बर, नियर बाय दिसंबर 2020 ये बिल्डिंग गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी को, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी साइंस को ये एलोकेट भी हो जाएगा. Renovations in all area of library furnishings, digitizations, mobile library and many more. Thank you. So friends, ये मैंने आपके संदर्भ में कुछ बात की RFID टेक्नोलॉजी और गुजरात यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की जो RFID प्रोजेक्ट है उसके संदर्भ में. हर एक लाइब्रेरी को अगर पोस्ट कोविड के बाद की मैं बात करूँ, जब भी लाइब्रेरी रीओपनिंग होगी तो उनके पास जो बजट अवेलेबल है या उनकी जो संस्था है या एडिशनल प्रपोजल गवर्नमेंट को या अपनी मतलब जो कंसर्न बॉडी को सबमिट करके RFID जो है वो प्रोजेक्ट इनिशिएट हो जाए, वो ऐसा अप्रोच करना चाहिए. तो कोविड-19 के बाद में जब भी ये रीओपनिंग होगी सारी लाइब्रेरीज, तो ये RFID इज ए गुड टेक्नोलॉजी, efficient technology for the library administrations and librarian information services. Once again, I congratulate Dr. Jagdish Joshi sir to introduce such a ICT based refresher course, orientation course, PhD coursework to the entire academic community of the nations in this COVID pandemic. Once again, thank you.